محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے راتوں میں ایک مبارک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ کے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ اس ایک رات کو جو عبادت میں گزارے گا اس نے گویا 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کی۔ اور جو خیر ہے عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہت بہتر۔ معمولی بہتری کے لیے یا معمولی فرق کے لیے لفظ خیر نہیں بولا جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا خیر من 1000 شہر، کہ وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں پر تھوڑا بہت فضیلت والی رات نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اب رب کا اپنے بندے پر انعام ہے، لیکن اس انعام کا پتہ جو ہے وہ اس بندے کو چلے گا جو عبادت کا ذوق رکھتا ہو، جو اپنے رب کی محبت اس کے دل میں موجود ہو۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس معاملے میں میری امت کے ساتھ ہی اپنے فضل اور رحمت کا معاملہ فرمایا، اور یہ رات اللہ نے میری امت کو ہی عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں میں سے کسی کو یہ رات نہیں ملی۔ مختلف روایات ہیں کہ یہ رات اس امت کو کیوں ملی۔ ایک ہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، بہت عمریں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی۔ اگر آپ کی امت نیک اعمال کرنا بھی چاہے اور نیک اعمال بہت کر کے ان امتوں کے ساتھ برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، کیونکہ کہاں 800 سال کی عبادت، کہاں 60 سال 50 سال کی عبادت۔ 50-60 سال میں بھی کچھ بچپن کے، کچھ آگے بڑھاپے کے، درمیان کے چند ایک سال بچتے ہیں تو کہاں برابری ہو سکتی ہے؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے عمروں کو دیکھا،
अपनी उम्मत की उम्र को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ कि मेरी उम्मत आमाल दे अंदर उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकी। तो उसकी तलाफी में अल्लाह ने रात अता फरमाई कि मेरे हबीब आप परेशान ना हो, आपकी उम्मत के लिए एक रात रखता हूं। अगर किसी को 10 बार ये रात नसीब हो जाए और 10 बार वो इसकी इबादत और फजीलत हासिल कर सके तो गोया 833 साल उस बंदे ने इबादत की। बाज़ रिवायात में ये भी इस रात के मिलने की वजह आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में वो शख्स जिहाद करता रहा। 1000 महीने, साल के कितने महीने? 12। अब खुद ही अंदाजा करें। सहाबा किराम को उस पर बड़ा रश्क आया, तो सहाबा किराम के उस रश्क को देखकर अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसकी तलाफी के लिए ये रात नाजिल फरमाई और अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को ये रात अता फरमाई। तीसरी रिवायत भी है इस रात के मिलने की, मामूली रात नहीं है। रमजान के आखिर आशरे की ताक रातों में अल्लाह ने इस रात को रखा है। और जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सामने आई है, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसको उस रात की इबादत मिल जाए, उस रात में अल्लाह के हुजूर खड़े होना नसीब हो जाए, अल्लाह उस बंदे की जिंदगी के पिछले गुनाह सगीरा माफ फरमा देते हैं। फजीलत और इबादत के जरिए जो गुनाह माफ होते हैं, आम उसूल यह है कि वो सगीरे ही होते हैं। जो कबीरा गुनाह है उसके लिए तौबा ताइब होना पड़ता है, तौबा करना पड़ता है। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 हजरात का जिक्र फरमाया। हजरत अय्यूब, हजरत जकरिया, हजरत हिस्कील और हजरत यूशा, कि 4 अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो 80-80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और पल झपकने के बराबर भी इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर साहबे किराम को हैरत हुई कि 80 साल वो भी इबादत में और 80 साल में एक भी नाफरमानी, एक भी लग़्ज़िश, एक भी खता नहीं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और आकर सूरह क़दर सुनाई कि आपको भी एक रात मिलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उस रात की इबादत जिसको मिल गई, गोया कि उसको 1000 महीनों से ज्यादा की इबादत का मौका पल झपकने में मिल गई। तो बहरहाल मुख्तलिफ रिवायात हैं। अक्सर वजह ये होती है कि एक ही जमाने में मुख्तलिफ वाक़यात के बाद कोई आयत नाजिल होती है तो हर वाक़े की तरफ निस्बत की जाती है। जिस निस्बत से भी आप रात को देखें, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए कोशिश यही की जाए कि बाकी रोजों का भी एहतिमाम हो, इबादत का भी एहतिमाम हो, और ये जो रात फजीलत वाली रात है इसके इबादत बंदे से छूटे नहीं। क्योंकि जब कबूलियत की घड़ी आती है और बंदे के लिए अल्लाह बेहतरी के फैसले फरमाते हैं तो अल्लाह ऐसे बंदों को फिर ये रात नसीब फरमाते हैं। जहां तक महरूमियत की बात है तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रमजान का महीना आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, और जो शख्स उस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया। लैलतुल क़द्र के खैर से जो बंदा महरूम रह गया वो सारी ही खैर से महरूम रह गया, और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन ही महरूम है, जिसके बारे में महरूमियत
का फैसला हो चुका है, जिस पर महरूमियत का ठप्पा लग चुका है, तो ऐसे ही बंदा है जो उस रात की फजीलत से, बरकत से महरूम रहता है, वगरना ऐसे आम बंदा उससे महरूम नहीं रहता। हकीकतन उसकी महरूमी में क्या शक, जो उस कदर बड़ी नेमत को हाथ से खो दे। पता भी चल जाए कि फलाना इस अशरे में है, दुनिया का कोई फायदा हो, तारीख किसी ने ना बतलाई हो, फिर भी बंदा ढूंढता है, कोशिश करता है, उन दिनों को याद रखता है, रोज वहां का चक्कर लगाता है, शायद आज हो, शायद कल हो, फिक्रमंद रहता है, दिन को भी रात को भी। और यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीन फरमा दी कि रमजान का आखिर आशरा, फिर आखिर आशरे पूरी की बात नहीं फरमाई, आखिर आशरे की ताक रातों में गोया 5 रातें होती हैं। अगर 80 बरस की इबादत की खातिर कोई 1 महीने तक रात जाग ले तो कोई महंगा सौदा नहीं, लेकिन यहां पर तो महीने की भी बात नहीं है, 10 दिन की भी बात नहीं है, रमजान के आखिर आशरे की ताकरातों की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद सारी बिशारतों के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के वादों पर जितना यकीन था, फिर भी इतनी लंबी नमाजें पढ़ते थे कि पांव पर वरम आ जाते। लेकिन आज हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के उम्मती कहलाते हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के इन फजीलत वाले कामों की क्या कदर की, सिर्फ नाम के ही उम्मती रह गए हैं। कोई ऐसा काम जो हम कहें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौक से किया, आज वे उम्मती होने के नाते से वो भी कर लेता हूं, लेकिन नहीं, दुनिया के सारे काम, सारी चीजें, तमाम के तमाम मामलात, उसमें बड़ा ज़ौक़ है, बड़ा शौक है, क्योंकि वो हमें नजर आ रहा है। और अल्लाह की रजा के लिए क्या हुआ काम, आखिरत में काम आने वाला काम, आखिरत की भलाई का काम, उसका वक्ती तौर पर हमें नतीजा सामने नहीं आता, इसलिए न उसमें दिलचस्पी रहती है और न करने का दिल करता है। जिनको पता चल गया ना कि आखिरत है, आखिरत की फिक्र है, आखिरत में काम आने वाले आमल यहां दुनिया से करके जाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात है कि नमाज के बाद घर तशरीफ ले जाते और घर में सुबह तक सारी की सारी रात नफल नमाजों में गुजारते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर रोजा रख दे, रात भर नमाज में गुजारते, रात के अव्वल हिस्से में थोड़ा सो जाते और रात के एक एक रकत में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरा पूरा कुरान पढ़ लेते थे। ये है शौक और ज़ौक़ रखने वाले हजरत, जिनको अमल का नूर मालूम था, जिनको अमल की बरकत का पता था, जिनको अमल की कीमत का पता था। सिर्फ साढ़े और मेरे दावा नहीं ये मैं मुसलमान हूं, ये मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत, ये सिर्फ दावे ही दावे हैं। असल ये कि मेरे और आपकी जिंदगी अमल की जिंदगी बन जाए, और उसी अमली जिंदगी बनाने के लिए रब ताला ने मुझे और आपको रमजान का महीना नसीब फरमाया कि इस महीने में इंसान अमली जिंदगी सीख ले, अमली जिंदगी गुजारने की मशक कर ले। सुबह किस टाइम उठना है, फिर अपने दिन का आगाज कैसे करना है, फिर दिन के नफली इबादत कैसे अदा करनी है, फिर पूरा दिन अल्लाह के हुक्मों को मान कर चलना है, अल्लाह की नाफरमानी और नाराजगी के कामों से बचना है। यही तो मशक हो रही। शाम कैसे करनी है, रात कैसे गुजारनी है, ये सारी की सारी मेरी और आपकी मशक ट्रेनिंग है। इस पर फिर इनाम का भी ऐलान हुआ, इस पर फिर इस इनाम की वजह से ही इस उम्मत को ये रात मिली और नमाज, नफली नमाज की सूरत में इसको नमाजें मिली और नेकियों के लिए
اور زندگی گزارنے کے لیے اور بہترین سلیقے کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ لیکن قرآن آج تو پہلے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اگر تعلق ہے تو اس حد تک ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور اس سے ثواب حاصل کروں، نیکیاں لوں۔ کہ اصل تو قرآن میری اور آپ کی زندگی بنانے کے لیے آتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ھدی للعالمین قرآن ہے، ھدی للمتقین قرآن ہے، لیکن میں نے آج تک اس سے رہنمائی نہیں لی۔ اس کے حکم کا مجھے نہیں پتا کہ قرآن مجھے کیا حکم کرتا ہے، حلال کے کیا حکم کرتا ہے، حرام کا کیا حکم کرتا ہے، جائز کا کیا حکم کرتا ہے، ناجائز کا کیا حکم کرتا ہے، کون سے کام کرنے کی ترغیب ہے، کس کام سے منع کیا جا رہا ہے، مجھے کوئی نہیں پتا۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دن اور یہ راتیں میری اور آپ کی بھی ایسی گزرے کہ ایک تو جیسے صبح میں نے کہا تھا کہ ایک اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سب سے پہلا مقصد میرا اور آپ کا یہی ہونا، اور دوسرا کہ میری اور آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے، میں اور آپ روزانہ اپنے آپ کا جائزہ لیا کریں۔ کہاں تک میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے، کہاں تک عبادات کا ذوق میرے اندر پیدا ہوا ہے، کہاں تک میرے اندر جو ہے عبادات کی عادت ہو گئی ہے، قرآن کا تعلق نصیب ہوا ہے۔ یہ روزانہ کی ترتیب سے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے آپ کا حساب خود کرنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو والی بات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔